Hello friends, welcome back my YouTube channel Sarma P Study. So friends, first of all, I would like to say, how are you all? I hope already you are fine, all the student. So friends, today now discuss about class 9 subject math. So these all these are question important because for your exam, you know very well your exam is near on March start and to March end. You know, so first March you have to will the exam for subject, and second March exam in two subject. So let's start. Don't be late because they are long question, long video, so long make the video, so every student don't watch because you have first of all you thumbnail you can say, and see why say don't click the video. And next again, every student short video in opening that always time short video watch, so don't worry, it is not good, it is very bad, your life, because your life is studied new, and you have to become in future. If you want to do, so you can do that, or you can do that every instruction, and your elder and your teachers, you first of all you have to read the instruction. Okay, their instruction you can see there are 4, and all questions are compulsory, and each question carries on mark, very well. First of all I told that before video. Okay, so 4 options are given for each question, choose the correct answer, and no marks will be dedicated on the 4 wrong answer. Okay, so first question, let's study. First, so first option, root 9. you know root 9 square 3, and pi the already irrational number, and 0.3333 there are rational number, and root under 2 to 5, 225 is the rational number, because sorry guys, a little bit. Okay, yes, it is good. So first of all you can say, you can watch there, it is in the, you can write on p by q. First of all, so how can write, in p by q, p upon q, because there are 0.3 in again by again you come to again come, so you can say right now upper side root bar, you mean bar, I mean bar, so there it is p by q, p upon q, 0.3 there bar, you can write in numerator there 9, and 3 in option
there you can say and -3 upon bar. 0.3 is subtraction in 3 and 9. So 3 you can write the minus 0.3 and 3 minus. So 3 you can say 3 and 3. So 3.3 equal 3 and 33 upon 9. So it is the rational number. Okay, so it is the correct option B, अपरिमेय संख्या, I mean rational number. Okay, next question, let's be see. Second question, which of the following numbers lie between A and B? I mean निम्नलिखित में से कौन सी संख्या और B के बीच स्थित है? You can understand. So it is the correct option नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि A और B के बीच स्थित है। तो अगर बात करेंगे तो इसका आंसर जो हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर, इट विल बी करेक्ट सेकंड करेक्ट ऑप्शन B. ओके, लेट्स स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन. इट इज द इक्वल, यू मीन इक्वल टू, इसको हमें बराबर मतलब हल करना है, सॉल्व इट. तो अच्छा क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि रूट माइनस रूट 7 और रूट 7 प्लस रूट 5, रूट 7 माइनस रूट 5 इंटू रूट 7 प्लस रूट 5. तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा बता रहा हूँ इसमें फार्मूला क्या लगाना है. यू टेक द फार्मूला, you can you know very well, or you know first of all you, because you have studied in 9 class, so for 5 class is the start by learning. So a minus, तो इसमें सिंपल फंडा लगाना है आप लोग को. a माइनस बी और a प्लस बी का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये तो आप लोग सब जानते हैं. तो बैठा दीजिए एक की जगह, रूट अंडर 7 रखेंगे तो रूट को स्क्वायर को हटाएंगे 7 रहेगा, और 25 को फिर 5 रूट 5 को हम हटा सकते हैं तो -5 कर सकते हैं. तो 7 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 2. तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या है, 2. इट इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, बोला गया है कि 125 का पावर है 2/3. I mean 1 to 125 is the power of 2. तो इसमें कुछ नहीं करना है आप लोग को. क्या करना है इसमें, 125 लिख करके, आप जानते हैं कि किसका 125 घन होता है, 5 का. तो इसको कैसे हल करना है, 5 का घन करना है, 5 का घन यानी 5 का घन 3 इंटू 2/3, कैंसल 3 तो 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग यानी 5 गुना 5 तो बराबर 25. कितना आता है, 25. तो इनमें से करेक्ट आंसर ऑप्शन 25 कहाँ है, ऑप्शन सी में सही जवाब. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं. बोला गया है कि इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है. तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 और एक्स स्क्वायर रूट अंडर 5y प्लस 4, एक्स प्लस 5/y प्लस 105 और x माइनस 2y प्लस रूट 5 नहीं है. अगर नहीं की बात किया जाए तो इसमें से करेक्ट आंसर ऑप्शन 5वां का सी हो जाए, क्योंकि a बट्टा में है लेकिन यहाँ दिया गया है x प्लस अपॉन 5/y दिया गया है इसलिए, और यहाँ देखिए x और y है माइनस में प्लस रूट अंडर, लेकिन इसलिए हमारा ये करेक्ट मतलब बहुपद नहीं है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. बहुपद 5x प्लस 3 का शून्यक है. तो इसको निकालेंगे. 5x प्लस 3 बराबर 0 और 5x बराबर -3, इधर भेजेंगे माइनस.
तो x बराबर -3/5। तो -3/5 का ऑप्शन में -3/5 ऑप्शन बी। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा सही जवाब। इसके बाद 7वां क्वेश्चन देख सकते हैं। यदि पी एक्स एक्स का पावर 3 एक्स का पावर 2 और x + 1 तो p - 1 का मान, मतलब p यानी x के जगह पर -1 रखिए और निकाल दीजिए। तो -1 का पावर 3 प्लस -1 का पावर 2 और प्लस मतलब -1 और -1 माइनस यहाँ दिया गया है, नहीं प्लस दिया गया है। क्या दिया गया? प्लस। तो -1 ही होगा, यहाँ हो जाएगा +1 हो जाएगा और -1 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। अब काटिए, माइनस प्लस का कैंसल, माइनस प्लस कैंसल, तो यहाँ 0 मान आ रहा है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुपद x² + 5x का गुणनखंड निकालना है। तो क्या करते हैं, आप लोग जानते होंगे कि x² खाली स्थान 2 और लास्ट ए, फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं 6। अब हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है इसी को। तो अगर 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो गुना करने पर 6x² आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 5x आना चाहिए। अगर हम 3x + 2x रखते हैं तो 2 तिया 6 भी x² आया, 3 2 5 भी आता है। तो यहाँ कॉमन लेंगे x, तो बचेगा x + 3 और यहाँ कॉमन लेंगे और 2 लेंगे तो बचेगा x + 3। तो देखिए एक आता है x + 2 और एक आता है x + 3। तो x + 2 और x + 3 कहाँ इंटू में, x + 2 x + 3। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप में होता है? किस रूप में होता है? तो y अक्ष पर अगर पूछा जाए, ध्यान देना है, अगर y अक्ष में पूछा जाए तो y का मान जो होगा, y अक्ष में पूछा गया तो x बराबर 0 होता है। अगर यही पूछता x अक्ष में, तो x अक्ष में पूछता तो x का मान हो जाता वही रहता और y का मान 0 हो जाता। लेकिन उल्टा क्वेश्चन बोला, y अक्ष पूछा है तो y रहेगा लेकिन x का मान 0 होगा। तो इस कंडीशन में कहीं दिख रहा है 0, y, तो 0, y ऑप्शन बी में सही जवाब। अगर यही पूछेगा x में, तो अगर x में पूछता तो करेक्ट आंसर सी हो जाता, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदु 3,7 की कोटि पूछा गया है। क्या पूछा गया? कोटि। तो इसका करेक्ट आंसर 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा। एक कोटि, 7 क्या है? कोटि, y होता है कोटि, ये x हमारा हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 11। अगला क्वेश्चन है, रेखीय समीकरण 3x - 2y = 5 की तुलना में x + by + c के रूप में किया जाए तो a और b c के मान क्या होंगे? तो सिंपल है। तो इसका करेक्ट आंसर अगर बात करें तो ऑप्शन गारो का हो जाएगा सी सही होगा। क्यों? ध्यान देना है कैसे निकालेंगे। a का मान अगर हम यहाँ बोला गया है कि ax, तो यहाँ a की जगह 3, ध्यान देना, ax x तो यहाँ भी है, y यहाँ भी है, तो y के जगह y जहाँ है b है तो b की जगह 2 और c की जगह क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -5 दिया गया है, क्या दिया गया है, -5 दिया गया है। तो इधर करेंगे तो माइनस होगा ना यार, इधर तो प्लस में पहले से। तो इसका सही जवाब अगर बात करेंगे तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब। यहाँ देखना है, सिर्फ निकालना है, ये तो भारी तो नहीं है, सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन। यदि x = 2 और y = 3 तो इसमें हल करके k का मान निकालें। कितना अच्छा है, यहाँ रख लीजिए x की जगह 2 2 4 और यहाँ 3 3 9, तो 4 9 4 13। तो करेक्ट आंसर 13 कहाँ है, ऑप्शन बी में। 13 कहाँ है, ऑप्शन बी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेखिक समीकरण 3x - 2y का एक हल होगा। तो एक हल होगा, इधर कीजिए। अगर बात करते हैं x - 2, हमें क्या करना है, हल निकालना है, मतलब बराबर 0 करना है। अगर हम ऑप्शन में दिया गया है कि 3 2 और 3 2 -2 और 2 3 और 3,
अगर हम 3x को, ऑप्शन तो करेक्ट सी होगा, कैसे बता रहा हूँ, 3 गुना x के बराबर 2 कितना होगा 6, ध्यान दीजिएगा। -2 गुना y की जगह 3 तो द्वितीय 6, तो 6 और 6 माइनस और प्लस में कैंसल, क्या हो जाएगा 0, तो 0 बराबर आ गया, तो यही सही जवाब। आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वो कथन जिसे सिद्ध किया जा सकता है कहलाता है, क्या कहलाता है, परिभाषा, विगृहीत, प्रमेय या अभिधारणा। तो इसका करेक्ट आंसर अगर बात करेंगे ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि सिद्ध करने वाला कभी भी प्रमेय का यूज करते हैं। किसका? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया है कि दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती, दो बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो 1, 2 या अनंत या 0। तो देखिए दो बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ, एक रेखा ही खींची जा सकती, क्या और रेखाएं खींच सकते हैं? नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 डिग्री पूरक यानी पूरक कोण का मान कितना होता है? जानते हैं हम, क्या जानते हैं कि पूरक बराबर जो होता है पूरक कोण का मान होता है 90 डिग्री। अब 90 में 80 घटा देंगे, कितना बचेगा? 10 डिग्री। तो 10 डिग्री में ऑप्शन दिया गया है, देख सकते हैं ऑप्शन 10 डिग्री दिया ए में, तो सेलो का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। बहुत आसान आप लोग का सवाल है, उसे भी एग्जाम में इस तरह से आएगा तो आप लोग फाड़ दीजिएगा क्वेश्चन को। सही जवाब है ना। चलिए नीचे देखिए आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिष्ठित करती है, तो पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री है, तो हमें ए अनुपात बी यानी 2:3, तो सी का मान निकाल। देखिए चित्र दिया, तो आकृति यहाँ नीचे दिया गया है। अब यहाँ देख सकते कि ए अनुपात बी, ये 2 है तो ये 3 है और ये 90 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ बोला गया है, क्या बोला गया क्वेश्चन में देख सकते हैं, बोला गया कि पी ओ वाई 90 डिग्री, मतलब यहाँ पी और वाई इसका मान 90 डिग्री और इसका मान इधर से पूरा करेंगे 90 डिग्री, ये 90 डिग्री 90 180 होता है। कितना होता है? 100। अगर हम सभी मान ले लेते हैं यानी यहाँ इसको मान लेते हैं 2x + 3x और प्लस 90, तो बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। 5x इधर घटा देंगे तो 90 होगा, x बराबर 90/5, तो कितना 18 × 5 = 90, तो 18 आया, कितना 8। अब काट देंगे, अब 2 अनुपात, हमें ये भी का मान निकालना है ना, ये भी और सी का मान, तो 18 दूना कितना होगा? 36, और 18 दूना 36, और फिर ए का मान, ए का और बी का 8 का 54, कितना हो जाएगा? 54। यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि क्वेश्चन में सी का मान भेजो, ठीक है। तो सी का मान हमारा जो हो जाएगा, तो हम क्या बोलें कि 18 दूना 36, ए का मान 54। अब यहाँ हम क्या करेंगे आगे, इसको इस तरह से हल करेंगे। हम जान लिए कि ए का मान आ गया कितना, ए का मान 36 और बी का मान 54, इतना तो पता कर लिए। अब क्या करना है हमें? कुछ नहीं, अंततः अब यहाँ जो दिया गया ये दोनों का P + C, क्यों अब दिखा रहा हूँ, ये देखिए एक रेखा जा रहा है और एक रेखा का मान कितना होता है? 180 डिग्री। B + C को जोड़ेंगे, B + C बराबर 180 डिग्री। अब B का मालूम है कितना है? 54 + C। अब 180 में 54 घटा दीजिए, तो 10 में 4 करे 6, 7 में 5 करे 2 और 1, तो 126। तो देखिए कहाँ ऑप्शन में 126? ऑप्शन डी में। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 18 नंबर में, तो हमारा सही आंसर 17 का क्या हो जाएगा? 126, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया है कि आकृति में यदि OP समांतर RS और OPQ का मान दिया 110 यानी P का मान दिया और यहाँ R का मान दिया, R एंगल का मान, तो हमें Q एंगल का मान निकालना। देखिए सिंपल है फंडा। इसका आंसर अगर बात करेंगे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा 18 का ए हो जाएगा। लेकिन कैसे आएगा? अगर हम सॉल्यूशन के साथ बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं, क्या जानते हैं?
देख सकते हैं कि ये जो समांतर है ये इसका समांतर है, दिया नहीं गया है, यानी ओ पी समांतर आर एस, ओ पी जो है समांतर आर एस का है, क्या है, आर एस है ना। और ए भी हम कर सकते हैं, यहाँ एन बिंदु छूट गया है तो एम एन के समांतर ओ पी भी है, ओ आर एस है। तो जब समांतर तो आपस में बराबर होता है तो यहाँ हम कह सकते हैं, यहाँ जैसे ए वाला यानी क्यू आर एस ए मान, और हम यहाँ से निकाल सकते हैं और ये एम क्यू आर इस तरह से निकाल सकते हैं, तो हमारा क्यू का मान निकल जाएगा, क्यू का मान निकल जाएगा। फिर हमें क्या करना है, इस तरह से यहाँ भी लेना है, यहाँ से क्यू पी ओ और यहाँ एन ओ पी, तो यहाँ से हमारा ये मान निकल जाएगा। जब ये दोनों मान निकल जाएगा, ये दोनों मान निकल जाएगा तो हमें क्या करना है, तीनों को लेना है। फिर इस तरह से इधर से लेंगे, फिर इधर से लेंगे, फिर इधर से लेंगे, तो हमारा पूरा निकल जाएगा। तो कितना मान होता है, 180 डिग्री एक रेखा का मान। तो जब इसका मान आएगा जितना, उसमें से उतना घटा देना, तो करेक्ट आंसर इतना। अगर हम बताएंगे, लेकिन हम हिंट्स दे दिए, आप लोग हल कर लेना। चलिए, क्योंकि जगह नहीं है या थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मोबाइल में। निम्नांकित में से कौन सी त्रिभुज सर्वसमता की कसौटी नहीं होगा, तो कसौटी नहीं होगा तो आप जानते हैं, तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, क्योंकि ये सर्वसमता का नियम नहीं बताता है, ये समरूपता का नियम बताता है। लेकिन सर्वसमता का नियम अगर बात करें, ये तीनों है लेकिन ये नहीं है, याद रखिएगा, और आप लोग पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन, यदि ए बी सी, यदि यहाँ बोला गया है यदि त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी और ए सी बराबर तो कोण भी 70 डिग्री, तो कोण ए का मान निकाल। देखिए, जो भुजा आपस में तो समूह कोण भी आपस में बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम ऐसे त्रिभुज लेकर बनाएंगे, ए बी सी नाम दे दीजिए, ए बी सी। देखिए, ए बी जितना है उतना ए सी, ये आपस में बराबर है, और कौन बी का मान 70 डिग्री, कौन बी का 70 डिग्री, तो कौन सी का मान निकालना है, कौन सी का मान निकालना है। तो कौन सी का मान अगर निकालेंगे तो 70 डिग्री ये दिया है ना, तो हमें कौन सी का मान, नहीं सॉरी, कौन ए का मान निकालना है। मतलब यहाँ ए बी सी ये 70 डिग्री दे दिया है, ये आपस में बराबर है, तो आप कह सकते हैं कि आपस में भुजा बराबर, तो समूह कोण भी आपस में बराबर होता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ए बी बराबर ए सी, मतलब कौन बी और कौन सी क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। अगर हम 70 कितना हो जाएगा, 140। ध्यान दीजिएगा, 70 140, तो ये कितना बचा। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। 70 140 और कितना घट रहा है, 40, तो 70 40 40 180, तो ए का मान कितना आ गया, 40। तो ऑप्शन कहाँ 40 दिया है ऑप्शन में, तो ए का मान 40। तो सिंपल फंडा है, सिंपल ध्यान देना है, सिर्फ हल करना है, ट्रिक बता दे रहा हूँ सब में। अगला, एक चतुर्भुज के कोण इतना दे दिया है, तो इस चतुर्भुज के सभी सबसे बड़े कोण का मान निकाल। देखिए क्या करना है, सब में एक्स लगा दीजिए, एक्स एक्स एक्स, और सबको जोड़ दीजिए, क्योंकि यार हम जानते हैं कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग यानी अंतः कोणों का कितना होता है, 360 डिग्री। अगर 3 2 5 5 10 10 18 आ गया, 300 काट देंगे, 18 9 36 यानी 20 आया, कितना आया, 20। अब 20 को गुना करिए, 20 80 160, तो 160 डिग्री आ रहा है। तो ऑप्शन में देखिए 160 दिया है, सी करेक्ट आंसर। सिंपल है, भारी कुछ नहीं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किनके विकर्ण समकोण पर समविभाजित होती है, तो विकर्ण बोला गया है, तो इसका अगर सही जवाब बात करेंगे तो ऑप्शन ये हो जाएगा, समचतुर्भुज का जो होता है, समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है क्या होता है, समविभाजित करता है एक दूसरे को, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आयत के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले बनने वाले चतुर्भुज होगा समचतुर्भुज। क्या होगा, समचतुर्भुज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि आकृति ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें बी सी का मान दिया 12 सेमी और ए ई का मान दिया है 6 सेमी, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सिंपल है,
बी सी का मान दे चुका, इसका मान दिया 12 और ए का मान दिया है 6। तो समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला याद रखना क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार कितना है 12 और ऊंचाई कितना है 6। काटिए, 2 छक 12, 6 छक 36। ऑप्शन देखिए 36 सेमी है, 36 सेमी स्क्वायर है करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्या है 36 सेमी, तो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या होगा, ये होगा। अच्छा थोड़ा सा रुकिए 1 मिनट। देखिए इसका आंसर अगर बात करें 36 नहीं होगा, 72 होगा। कैसे, इसका आंसर जो होगा 72 होगा। क्यों होगा 72, बता रहा हूँ। हम एक थोड़ा सा कंडीशन दूसरा तरफ निकालें, क्योंकि समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है आधार गुना ऊंचाई, लेकिन समांतर चतुर्भुज का अगर बात करें तो आधार गुना ऊंचाई सिर्फ होता है। क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, यानी 12 छक 72 सिर्फ गुना कर दीजिए तो 72 सेमी होगा करेक्ट आंसर। थोड़ा मिस्टेक हो गया और हर इंसान से गलत होता है, गलतफहमी कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया गया है क्वेश्चन ये है, थोड़ा इसको जूम करके छोटा कर लेता हूँ। एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेमी तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। बहुत आसान सवाल है। एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज मान के चलिए, और एक त्रिभुज इसी में दिया गया है और इसका नाम ये ABCD दे दीजिए। इसका नाम कोई अपने से फिर, अब देखिए एक ही आधार है, ये आधार दोनों का एक ही, लेकिन समांतर चतुर्भुज एक ही में स्थित है। तो क्या होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर चतुर्भुज के बराबर होता है, मतलब आधा होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 12, इधर गुना कर देंगे चतुर्भुज, तो 12 दूना 24। तो ऑप्शन में देखिए 24 दिया है, तो 25 का करेक्ट आंसर 24 हो जाएगा सेमी स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 25 हो गया। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती। कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती, व्यास कहलाती। अगला, वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है तो जीवा केंद्र पर अंतरित कोण का मान क्या होगा। देखिए एक वृत्त की एक जीवा बोला गया है, वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या के बराबर होता है। सही बात है, यहाँ वृत्त की त्रिज्या है बराबर, तो जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, जो अंतरित कोण यहाँ, तो हमें कोण का मान निकालना है। इसका मान ये ABCD इस तरह से मान लेंगे और निकाल देंगे। तो करेक्ट आंसर अगर 27 का ऑप्शन देखेंगे तो सही जवाब हो जाएगा 27 का C हो जाएगा, 60 हो जाएगा। निकाल कर देख लीजिएगा, बस हिंट्स बता दिए, हिंट्स के अनुसार आप हल कर लेना। आकृति में ये CB का मान निकालना है, आकृति दिया गया है देख सकते हैं, तो ये CB का मान सिंपल है। हम जानते हैं प्रमेय के अनुसार ये जितना कोण होता है ना, ये जो जितना कोण होता है ये इसमें इसका आधा होता है। मतलब अगर इसका मान निकालने बोलेगा तो ये अंतरित कोण का आधा कर देना, बस कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका मान निकालने बोले तो इसका 2 गुना कर देना। तो 50 का आधा अगर बात करें तो कितना होगा 25, कितना होगा 25। तो 28 का करेक्ट आंसर C हो जाएगा। अगर ये मान निकालने बोलता तो हम इसका 2 गुना कर देते हैं, समझ में आया। तो ये मान दिया रहेगा उसमें। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज ABC में AB 6 सेमी और कोण ये 90 डिग्री, तो त्रिभुज की रचना संभव है नहीं है यदि BC तथा AC का योग क्या होगा। तो यहाँ AB का मान दिया, ABC त्रिभुज जिसमें ABC नहीं, यहाँ तो ये होगा क्योंकि ये बोला है समकोण त्रिभुज एक तरह से। यहाँ ये है समकोण है और यहाँ B है 6 सेमी है, तो यहाँ C है। तो यदि BC ये BC और ये C का योग क्या होगा, इसका और इसका योग निकालने वाले समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, निकल जाएगा। तो इसका मान दिया है, इसका मान दिया है इस तरह से, इसका मान दिया है 6 सेमी। तो 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 6 सेमी। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ AB जो 6 सेमी है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला यहाँ ये है, यहाँ B है और यहाँ C है। ए वाला और ये वाला आपस में बराबर है। यहाँ देखिए, नहीं आपस में बराबर नहीं बोला, योग बोला है कि यदि ABC तथा AC का योग है, ये है ना योग है, तो यहाँ 6 सेमी दिया गया है, 90 डिग्री दिया गया है।
तो 6 सेमी यहाँ दिया है, बी सी का मान, ये बी का मान, तो इसका योग के बराबर है। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे, अगर 3 यहाँ 3 रखते हैं, 3 3 कितना हो जाएगा 6, तो इसका 6, तो 3 3 कितना हो जाएगा 6, तो सही, इसलिए सही जवाब हो जाएगा 6। देखिए शॉर्ट तरीका बताएं, अपना तरीका लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगर आप जानते हैं अलग तरीका तो भी बता सकते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं दे चुका है। तो इसका सही जवाब अगर बात करेंगे तो इसका ऑप्शन कितना है, ऑप्शन देख सकते हैं 30 सेमी, 40 सेमी। सबसे पहले आप लोग क्या करना है, इस देखिए अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने नहीं जानते तो ट्रिक बता रहा हूँ। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, और ए प्लस बी प्लस सी का मान जोड़ कर लेना, है ना, एस का मान निकल जाएगा। जब एस का मान निकलेगा तो हम जानते हैं फार्मूला एस इंटू हीरोन सूत्र का एस माइनस ये फार्मूला में बैठा करके निकाल लीजिएगा, सही निकलेगा। तो इसका सही जवाब 30 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 2√2 सेमी है। मतलब प्रत्येक भुजा दिया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग जानते होंगे। तो इसका फार्मूला होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो भुजा दे चुका है कितना 2√2। अगर हम कैंसिल करेंगे इसमें ध्यान दीजिएगा, तो √3 ऊपर में रहेगा 4, इसको 2√2 और 2√2, तो 2 दूना 4 और 2 2 कैंसिल, 2 दूना 4 यानी √3 और 2 को बाहर निकालेंगे तो 2√3 आ रहा है। तो करेक्ट आंसर देखिए 2√3 का ऑप्शन सी में है, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेमी और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते होंगे कि शंकु का जो क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर बात करेंगे तो पाई आर और एल होता है। अब पाई का मान बैठा दीजिए 22/7 और एल का मान बैठा दीजिए कितना है 10, और एल का और आर का मान बैठा दीजिए 10.5 का आधा कितना हो जाएगा, त्रिज्या निकालना है 10.5, कैंसिल एक हो जाएगा 0। तो यहाँ हो जाएगा, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है, तो इसमें हल करेंगे तो देखिए अगर बात करेंगे तो यहाँ जो दिया गया है 10.5 व्यास दिया है, तो त्रिज्या अगर इसका आधा हो जाएगा यानी 10.5 का आधा ये 2 हो जाएगा। इसको हटा के देख लीजिए तो 105/20 आ रहा है, मतलब त्रिज्या निकल गया, त्रिज्या को चाह दिया है। अब वहाँ फार्मूला बैठा करके हल कर लीजिएगा, बस निकल जाएगा। तो इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मान निकाल लीजिएगा। आज थोड़ा मोबाइल में प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए हम यहाँ स्पष्ट नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ हिंट्स दे रहा हूँ, और फिर भी अगर जो समझदार स्टूडेंट वो बना लेगा। चलिए, यदि एक बेलन की त्रिज्या 4 सेमी है और ऊंचाई 10 सेमी, तो बेलन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर बात करेंगे तो क्या होता है, देखिए बेलन 2 प्रकार का होता है। एक बेलन जो होता है 2 प्रकार का होता है, नहीं एक गोला वाला तो गोला अर्धगोला होता है ना, नहीं बेलन तो एक ही प्रकार से, एक खोखला भी होता है एक पेक भी होता है, ये होता है। लेकिन यहाँ बोला गया है त्रिज्या 4 सेमी और ऊंचाई 10 सेमी, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला लगा देंगे और हल कर देंगे। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ क्या करना है आप लोग, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है 2πr ब्रैकेट r प्लस एच। अब इसमें मान निकाल लीजिएगा, हल हो जाएगा। तो 2 का 22/7 रखिएगा, 2 गुना 22/7, r का मान 4 और यहाँ r प्लस एच, तो जोड़ देंगे 14, 7 दूना 14 और सबको गुना कर लीजिए। तो इसका आंसर सही बात करेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सही जवाब 352 होगा। हल कर लीजिएगा, सिंपल है, फार्मूला बता दे रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, 2πr इंटू r प्लस एच, इसमें रखिएगा मान निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है
कि एक घन का आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर, तो घन की भुजा क्या होगी। कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर बात करेंगे तो घन का आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर क्या होता है, हम जानते हैं क्या होता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। क्या होता है 6a²। तो 6 यहाँ है, 6 मात्र करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। सिंपल था। अगला क्वेश्चन, 3.5 सेमी त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं जिसमें त्रिज्या दे चुका है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते होंगे क्या होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले भी दो प्रकार का होता है, गोले भी दो प्रकार का होता है। आप जैसे होता है गोला, एक खोखला और एक होता है पूरा बेलन। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फार्मूला ये लगा देना। इसमें क्या करना है, फार्मूला लगाना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। बस इसमें मान रखिएगा, निकल जाएगा। 3.5 काटेंगे तो 4 गुना 22/7 गुना r का मान दिया है तो 3.5 3.5, इसको हटाएंगे दशमलव तो 1 शून्य, फिर इसको हटाएंगे 1 शून्य यानी 10, इसको काट 5 से 35, मतलब काट करके हल कर लीजिएगा। फार्मूला ये याद रखना है। आप सिंपल इतना आप नहीं जानिए तो क्या पढ़ रहे हैं आप 9th क्लास। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 3 सम संख्या, तो माध्य देखिए प्रथम 3 सम संख्या बोला है तो 2 भी सम है, फिर क्या होगा 4 भी सम है और 6 भी सम है। इसका माध्य निकालना है। तो अगर बात करेंगे ये माध्य निकालना है इसमें से, तो 4 6 10 10 2 12 हो रहा है। क्या हो रहा है 12। तो इसका सही जवाब अगर बात करेंगे तो 36 का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 36 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। अरे क्यों होगा, लेकिन बताना फिर से ध्यान दीजिए। प्रथम 3 संख्याओं का माध्य निकालना है, सम संख्या, तो 2 और प्लस कितना हो जाएगा 4 प्लस 6। अब इसको जोड़ेंगे तो 12 आ रहा है। कितना 12 आ रहा है, 12 आ रहा है। तो माध्य बोला गया है। अगर हम 2 इसको भाग लगाएंगे तो इसमें 2 छक 12 आ रहा है ना। इसमें से अगर बात करते हैं तो यहाँ क्या करना है, 3 संख्या है टोटल 12 आया और एक संख्या है 3 से भाग लगा दीजिए 3 3 चौका 12, तो 4 आंसर आ गया। समझ में आया नहीं आया, नहीं आया शायद। तो बता रहा हूँ फिर से, 3 संख्या 2 4 प्लस 6 को जोड़ेंगे और भाग लगाएंगे कुल कितना 3, अब 12 आ जाएगा। 12 3 चौका 12, 4 आंसर। इसको जोड़ लेंगे तो 12 होगा कि नहीं, और 3 से भाग लगा दी 3 चौका 12, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 4, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देख सकते हैं क्या बोला गया है कि एक क्रिकेट मैच में एक खिलाड़ी ने पहले 10 पारी में 12 18 13 5 4 11 5 5 6 12 बनाए। खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों का बहुलक निकालना। तब बहुलक का मतलब होता है जो ज़्यादा बार है। अब देखिए ज़्यादा बार क्या है, देखिए 12 तो एक ही बार है, 18 तो एक ही बार है, 5 देखिए 1 बार 2 बार 3 बार है, 5 कितना है 3 बार, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 5, क्योंकि और है संख्या नहीं। तो करेक्ट आंसर 5 है। जो ज़्यादा बार रहेगा उसी को बहुलक बोलते हैं। देखिए माध्य आप लोग क्या करना है, सबसे पहले इसे अरेंज कर लीजिए। अगर अरेंज कर लोगे तो सही निकलेगा। तो 2 पहले आएगा यानी छोटी संख्या से, इसके बाद क्या आएगा 5 आएगा, इसके बाद 7 आएगा, इसके बाद 8 आएगा, इसके बाद 9 आएगा, इसके बाद 11 आएगा, इसके बाद 13 आएगा। अब देखिए माध्य, तो बीच में देखिए 3 इधर और 3 इधर, तो बीच में क्या है 8, तो यही माध्य हमारा करेक्ट आंसर। विषम था इसलिए आसान हो गया। अगर सम संख्या रहेगा, जैसे यहाँ 3 3 6 एक साथ है, अगर ये 8 हो रहेगा तो क्या करते हैं अरेंज करके और ये वाला 5 चौथा और 5वां का योग कर देते हैं और बटा 2 निकल जाएगा। समझ में आया, इस तरह से बना लीजिएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर चित 600 बार प्राप्त होता है, तो पट आने की प्रायिकता क्या होगा। देखिए चित आया 600 बार, तो यहाँ 600 में 1000 घटा देंगे, मतलब 1000 में 600 घटा देंगे कितना 400 बार।
कितना 400 बार आ रहा है, तो पट आने के 400 बार, लेकिन सिक्का एक ही है, सिक्का एक ही है। तो इसका करेक्ट आंसर 39 का हो जाएगा ऑप्शन। कैसे निकालेंगे, निकाल करके बता रहा हूँ। क्या करना है आप लोग को, ये 1000 में से माइनस कर देंगे 600, तो 400 बार आया। अब 400 बार बट्टा कुल कितना बार उछाला गया, 1000 बार। अब काट लीजिए, कैसे काटना है, 400 बट्टा 1000। देखिए 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य कट गया, 2 दूना 4 2 पचे 10, तो 5/2 आ रहा है। तो 5/2 ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन बी में सही जवाब। चलिए लास्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल, और सारे इम्पोर्टेंट उसे भी है। निश्चित रूप से घटित होने वाली घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो आप जानते हैं क्या होती है, घटना घटे या ना घटे की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। तो सही जवाब 1 हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग प्रैक्टिस करना है। मैथ तो सिंपल था, सब हिंट्स हम दे दिए, सब सॉल्यूशन के साथ बताए। एक दो क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन छूट गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, और छूटा होगा तो हम हिंट्स सब में दिए, तो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना पढ़ाई कीजिए, क्योंकि 1 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।